So hello and welcome back to yet another AdiFit training program video, and I hope you liked my previous video in which I spoke about the kind of dietary changes you can make in your lifestyle during winters. तो I hope आपको पसंद आया होगा और आपने वो changes already make करने शुरू कर दिए होंगे अपनी diet में. So going forward, today's video is going to be about the kind of exercises that you should be doing, especially during winters, which will help you in gaining size, strength and muscle mass. So I'll be telling you 7 exercises for all your body parts that you should be doing in your exercise regime if you want to increase your size and your strength during winters. So let's get started. Over the edge, feel like I'm floating through the air. So as you can see, this is our fitness tree motivation board और इस पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, from inspirational quotes to personal goals of all the children that come to me, जितने भी बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, to some other stuff. और इसी पे ही एक सेगमेंट है यहाँ पे in which I have written those 7 exercises that I'll be telling you about in today's video. तो ये कोई ऐसी मैजिक एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो शायद आप ऑलरेडी नहीं करते, बट इन पे आपको क्यों स्पेशल फोकस करना है या एक्स्ट्रा फोकस करना है ड्यूरिंग विंटर्स और उसका क्या रिजल्ट होगा. आई विल गो लिटिल बिट इन डेप्थ इन दैट. थोड़ा सा उस बारे में मैं बात करूँगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एक्सरसाइज which is for your chest, which is everyone's favorite body part, or everyone who wants to get big in the gym. Normally they start with their chest. We want a nice big chest. It should be cut also, it should have some size on it also. So the first exercise for getting that kind of chest is your incline dumbbell or barbell press. तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है which I am pretty sure that you would already be doing in your workout. But होता क्या है कि normally people focus more on the flat bench. आप किसी को भी अगर पूछते हो जिम में कि what is your bench strength, so you don't imply your incline bench strength, you imply what is your flat bench strength. तो normally people go heavy on the flat bench. उसके अलावा लोग डिक्लाइन भी काफ़ी करते हैं, बटरफ्लाई भी करते हैं, केबल क्रॉसओवर्स भी करते हैं. जो एक एक्सरसाइज है जिस पे थोड़ा सा कम फोकस करते हैं वो है इंक्लाइन बेंच. क्योंकि normally what happens is that you are not able to pick up as much weight on the incline bench as you can on a flat bench or a decline bench. वो बेंच का एंगल ही ऐसा होता है कि इट डजंट लेट यू लिफ्ट टू हैवी. और कई बार सपोज आप हैवी लिफ्ट करते भी हो तो इट कम्स ऑन योर शोल्डर. तो उस चक्कर में आप उस पर इतना आउट ऑफ योर स्किन नहीं जाते बिकॉज यू डोंट वांट टू इंजर योर शोल्डर. बट दैट इज़ वेयर यू आर रॉन्ग बिकॉज इफ यू वांट टू रियली इंक्रीज द साइज ऑफ योर चेस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी चेस्ट थोड़ी सी आउटवर्ड्स हो एंड इट शुड हैव दैट फुलनेस एंड मसल मेच्योरिटी, देन यू नीड टू हैव योर इंक्लाइन बेंच राइट अप देयर विद योर फ्लैट बेंच. So people, because they don't put so much of stress while doing the incline bench and they keep it on the back burner कि चलो हम फ्लैट हेवी मार लेंगे, हम डिक्लाइन भी हेवी मार लेंगे, इंक्लाइन हम थोड़ा सा कम मार लेंगे, तो कभी भी उनकी अपर चेस्ट डेवलपमेंट होती नहीं है. लोअर चेस्ट और मिडिल चेस्ट उनकी ठीक होती है बट दे आर सॉर्ट ऑफ फ्लैट फ्रॉम द अपर चेस्ट. सो इफ़ यू रियली वांट टू फिल अप योर अपर चेस्ट, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी फुलनेस, एक थिकनेस आपकी चेस्ट में आए, यू हैव टू इंकॉर्पोरेट द इंक्लाइन बेंच एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू डू इट अर्ली इन योर वर्कआउट. सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि आप सेकेंड या थर्ड नंबर पे एक्सरसाइज करो, मे बी वार्म अप योर चेस्ट नाइसली एंड स्टार्ट विद द इंक्लाइन बेंच. And but for that you really need to warm up your shoulder, because if you don't do that you will end up with an injury and then maybe you will write something in the comment section and say कि आपने बोला था कि incline bench heavy मारो but हमारा तो shoulder injure हो गया. So the best way to do that is to give your shoulder and your upper body at least 10 minutes of warm up before you hit the incline, if you plan to do incline as your first exercise. नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप केबल क्रॉस ओवर के साथ या बटरफ्लाई के साथ अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हो. Do 4 to 5 sets of either crossover or butterfly and then move on to the incline bench. So let me just show you the kind of incline presses that you can do if you want to increase the strength in your upper chest. So although मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है incline dumbbell या incline barbell press, बट आपके जिम में अगर इसके अलावा भी apparatus है, इक्विपमेंट है, जैसे कि मेरे जिम में है, so you can always do that as well. ये पत्थर की लकीर नहीं है कि incline dumbbell या incline barbell ही मारना है. So let me just show you what I'm talking about. So this is a multi press which I have in my gym. इसमें incline, decline, flat, shoulder के लिए और shrugs के लिए 5 एक्सरसाइज हो जाती हैं. So this is a very good equipment if you want to sort of lift heavy in your incline. Because क्या होता है बारबल में कई बारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है. जो बारबल का मोशन होता है इट्स अ फिक्स्ड मोशन. ये सॉर्ट ऑफ आपको डंबल के साथ जो फील आती है वो वाली फील आती है इसमें
कि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो इसमें ज़्यादा आता है जो बारबल पे इतना नहीं आ पाता। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर इंक्लाइन बेंच स्ट्रेंथ। आप इस पे वर्कआउट कर सकते हो अगर आपके जिम में अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू डू इंक्लाइन प्रेसिंग ऑन अ बेंच लाइक दिस। तो आप डंबल प्रेसिंग कर सकते हो, और डंबल प्रेसिंग में भी उतना ही इफेक्ट आता है आपके इंक्लाइन चेस्ट पे जो कि बारबल प्रेसिंग में आता है। डंबल में बेनिफिट ये होता है बिकॉज फ्री रेंज ऑफ मोशन होता है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो व्हेन यू आर ऑन द टॉप। ठीक है, आप बारबल को क्या होता है, आपको बारबल में आपको होल्ड भी करना होता है, वेट को स्टेबलाइज भी करना होता है, तो उतनी देर आप उसको होल्ड करके रख नहीं पाते। डंबल में यू कैन गेट दैट एक्स्ट्रा स्क्वीज ऑन टॉप एंड मे बी होल्ड इट फॉर माइनर 2 or 3 seconds. So I in fact prefer doing this instead of doing the barbell presses because I can max out on this. तो इसमें मैं 30 का डंबल, हमारे जिम में 30 से ऊपर मैंने डंबल रखे नहीं हुए बिकॉज आई फील दैट 30 का जो डंबल है इज गुड इनफ इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड दैट। अगर आप 30 के डंबल पे 12-13 रैप खुद से मारते हो, दैट मीन्स यू हैव रियली गुड स्ट्रेंथ, और उसको अगर आप बेंच पे लेके जाओगे तो आप इजीली 120-130 प्लस की फ्लैट बेंच और समवेयर क्लोज टू दैट की इंक्लाइन बेंच भी मार लोगे। So this is the other option. इसके अलावा you can always put this bench inside a Smith machine and do some Smith machine pressing. Again that is a fixed barbell on the machine. तो उस पर इतना ज़्यादा आप पुश नहीं कर पाते बिकॉज ज़्यादा आप पुश करते हो तो आपका जो ये एंटीरियर डेल्टोइड है विद इन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर शोल्डर ये इफेक्ट होता है। सो इवन इन माई जिम आई डोंट एडवाइज द चिल्ड्रन टू गो रियली हेवी ऑन द स्मिथ मशीन। अच्छा, अगर एक कंटिन्यूस पंप के लिए आपको वर्कआउट करना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, यू कैन डू दैट ऑन दिस। उसके अलावा वी हैव दिस कन्वेंशनल इंक्लाइन प्रेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जिम। सो ये सबसे पुरानी मशीन है, और अगर आपने कभी पुराने वीडियोस देखे हो आर्नल्ड के या ऑल द अदर बॉडी बिल्डर्स ऑफ दैट एरा, दे यूज्ड टू रियली यूज दिस मशीन अ लॉट। In fact, Arnold is like the benchmark, the gold standard in a developed chest, and he used to be on this machine, always doing incline presses on this machine. आजकल बच्चे ये कम यूज़ करते हैं बिकॉज आजकल मशीन्स में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, बट जो क्लासिक चीज़ होती है वो क्लासिक ही होती है, एंड दिस इज अ रियली गुड एंड रियली इफेक्टिव मशीन। इफ़ यू हैव दिस इन योर जिम, आप इन सारे में ऑल्टरनेट कर सकते हो। तो मगर एक हफ्ता अगर आप ये कर रहे हो तो एक हफ्ता आप स्मिथ कर सकते हो, एक हफ्ता आप इंक्लाइन डंबल प्रेस कर सकते हो, एक हफ्ता आप मल्टी प्रेस कर सकते हो। सो दैट्स सो मेनी ऑप्शन। आप ये भी नहीं बोलोगे कि मैं बोर हो गया इंक्लाइन प्रेस करके। सी द होल आइडिया ऑफ टेलिंग यू टू डू दिस वन एक्सरसाइज फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज दैट अभी 2 महीने रह गए हैं विंटर्स के, पूरा जैन और पूरा फेब, विच मीन्स कि अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट करते हो तो यू विल हैव 8 गुड वर्कआउट्स, and if you work out a body part twice in the week, then you'll have 16 good workouts. So that is good enough time for you to develop your muscle, and by doing this one exercise and really focusing on it and putting in that extra effort, you will be able to see a change after these 2 months. So start doing this from today. Don't wait कि मैं अगले हफ्ते करूँगा। जो भी आपका नेक्स्ट चेस्ट वर्कआउट होगा, आप ज़्यादा तवज्जो इंक्लाइन प्रेसिंग पे रखो, फ्लैट पे, डिक्लाइन पे, बटरफ्लाई पे, क्रॉस ओवर पे आप बाद में जाओ। मैक्स आउट ऑन द इंक्लाइन चेस्ट एंड यू विल सी अ डिफरेंस within 2 months, even before that. So this is the kind of double body part split that the children at my gym are doing right now. अभी बच्चों को मोस्टली मैं ये करा रहा हूँ, and this is what I meant when I said कि अगर आप ऐसा कुछ फॉलो कर रहे हो तो you will be hitting chest twice in the week. So you still have 16 good workouts to go before the end of winter. मैं पर्सनली ये नहीं फॉलो करता, मैं सिंगल बॉडी पार्ट करता हूँ, आज से नहीं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। तो मैं एक ही बार चेस्ट हिट करता हूँ वीक में, तो इसीलिए मैं अगर सपोज इंक्लाइन पे फोकस कर रहा हूँ, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग जस्ट 1 एक्सरसाइज फॉर इंक्लाइन आई डू 2 और मे बी इवन 3 एक्सरसाइजेस। तो जैसे कि मैंने आज ही चेस्ट हिट किया है, सो आई स्टार्टेड विद दिस, इसके बाद मैंने इंक्लाइन डंबल भी किया, और मैंने फ्रॉम द टॉप ऑफ द पुली आई डिड सम इंक्लाइन क्रॉस ओवर्स। So my incline chest right now is totally full, and one more exercise, it's an additional exercise, it's not part of this whole thing that I've written down, but another exercise that you really need to have in your workout if you want a nice full chest is dumbbell pull over. तो वो ऐसी एक्सरसाइज है, वो भी आज से नहीं, पिछले 50, 60, 70 सालों से वो एक्सरसाइज जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, दे डू दैट एक्सरसाइज, दे नेवर लीव इट इन देयर वर्कआउट। आई नो आजकल बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, हर एक पार्ट की अलग मशीन आ गई है, बट कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएंगी, और फैशन की बात नहीं है, दे आर देयर बिकॉज दे आर इफेक्टिव। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वर्कआउट, इट्स अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज इफ यू डू, एंड यू नीड टू हैव डंबल पुल ओवर्स इन योर वर्कआउट, इन योर एवरी वर्कआउट।
तो उसको आप ऐसे मत रखो कि मैंने लास्ट वीक मारा था, मैं इस वीक नहीं मारता, या अगर मैं डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट मार रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट हाफ में कर लिया है, अब जो मेरा सेकंड वर्कआउट है उसमें मैं नहीं करता. यू नीड टू हैव दैट इन एवरी वर्कआउट एंड यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज, बिकॉज सी हैविंग अ फ्लैट चेस्ट इज अगेन समथिंग दैट लॉट ऑफ द बॉयज हैव एन इशू विद. वो इतनी चेस्ट मारते हैं उसके बाद भी उनकी चेस्ट भरती नहीं है, बढ़ती नहीं है, वो फुलनेस उसमें आती नहीं है, बिकॉज ये दो एक्सरसाइजेस पे वो फोकस नहीं करते. एवरीवन इज फोकस्ड ऑन अ फ्लैट बेंच, एवरीवन फोकसेस ऑन डूइंग रियली हेवी ऑन द बटरफ्लाई, क्रॉसओवर के बहुत सारे रेप्स मार लेंगे और फिर बोलेंगे कि हमारी चेस्ट बढ़ती नहीं है. तो जो चेस्ट बढ़ाने के लिए जो दो एक्सरसाइज हैं, विच इज़ योर इंक्लाइन एंड योर पुल ओवर, यू नीड टू फोकस ऑन दैट. आप ये करो एंड डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज, आई कैन गारंटी इट दैट. The next exercise in this segment is alternate hammer curls for your biceps. तो चेस्ट के बाद जो नेक्स्ट मसल आता है विच एवरीवन वांट्स कि जी हमारा मसल ये बड़ा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, यू नो इट्स लाइक अ शो ऑफ मसल, इज योर बाइसेप, विच इज नंबर 2 ऑन द लिस्ट. And the number 1 exercise for increasing the strength and the size of your bicep is hammer curls. So I know everyone is really fascinated with, you know, alternate dumbbell curls, barbell curls, preacher curls. तो एक एक्सरसाइज जो छूट जाती है इसमें पीछे, जो इतनी मे बी अट्रैक्टिव नहीं है या लोग उसको शुरू में नहीं मारते, इज़ योर हैमर कर्ल. तो आप क्या कर सकते हो, आई डोंट एडवाइज दैट यू स्टार्ट योर वर्कआउट विद योर हैमर कर्ल्स. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट योर वर्कआउट विद आइदर अ preacher मशीन or cable curls or anything small, even concentration for that matter. And once there is enough blood and enough oxygen in your muscle, जब आपका मसल थोड़ा ठीक ठाक सा पंप हो जाए, उसके बाद आप हैमर कर्ल पे आओ. और नॉर्मली होता क्या है इन अ बाइसेप वर्कआउट, हैमर कर्ल इज लाइक द लास्ट ऑफ द सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज दैट यू डू, एंड बाय दैट टाइम योर बाइसेप इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. तो आप ना तो बहुत ज़्यादा हेवी उठा पाते हो हैमर में, और ना आप उतने फोकस के साथ वो एक्सरसाइज कर पाते हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अरे बस अब वर्कआउट खत्म होने वाला है, फटाफट मारो और ख़त्म करो एक्सरसाइज. तो वो नहीं करना आपने अगर आपको अपने बाइसेप की स्ट्रेंथ बढ़ानी है और अपने बाइसेप का साइज इंक्रीज करना है. सो योर हैमर एक्चुअली हिट्स द लॉन्गर हेड ऑफ योर बाइसेप. बाइसेप में 2 हेड होते हैं, स्मॉल हेड और लॉन्ग हेड. तो आपका जो लॉन्ग हेड है उसको हिट करता है, एंड दैट इज एक्चुअली द हेड विच गिव्स द साइज टू द बाइसेप. जो शॉर्ट हेड है वो दैट्स फॉर योर पीक. अगर आपको अपना बाइसेप का, जिसको हम यू नो जो गोल बोलते हैं, अगर आपको बाइसेप अपना गोल करना है, देन यू कैन फोकस मोर ऑन डूइंग पीक एक्सरसाइजेज लाइक कंसंट्रेशन कर्ल्स, preacher curls, you know, even single arm dumbbell curls. But if you want to increase the size and the muscle mass of your bicep, then you should focus on hammer curls at least for these 2 months. जो अगले 2 महीने बचे हैं विंटर के, उसमें आप फोकस करो. अगर आप फोकस करके एक्सरसाइज करते हो ना, ये डेफिनेटली आधा 1 इंच आपका बाइसेप ज़रूर बढ़ेगा. And I'll just demonstrate couple of variations that you can do for your bicep. I'll just take these off and at least I'll show you the muscle and how it works when you do hammer curls. So एक तो होता है आपका conventional hammer curl, which is just this motion, just like a straight motion up and down. So you can start with this, you can do this once a week, you can do this. And like I said, if you're doing a 2 body part split, तो इसका मतलब आप 2 बारी हफ्ते में बाइसेप मारोगे. तो एक बारी तो आप इसको ऐसे मार सकते हो. Next time what you can do is you can do the inside variation of the same exercise in which you will be hitting the dumbbell like this. थोड़ा अंदर को रहेगा ये, और ये भी आपका जो outer head है, जो long head है, इसी को work करेगा ये भी. So that's another option that you can do. The third thing that you can do is you can use a rope. So आप ऐसे rope का use कर सकते हो, और rope के साथ भी आप hammer कर सकते हो like this. So this is another variation of hammer which you can do. 3 वेरिएशन ये होगी, एक वेरिएशन में आपको और दिखा दूँ. सो द लास्ट वेरिएशन कैन बी डन ऑन द बॉक्स लाइक दिस. आप इसको लेके भी कर सकते हो. सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स. सो मैं द होल आइडिया ऑफ टेलिंग यू ऑल दीज वेरिएशंस इज दैट आप बोर ना हो एक ही एक्सरसाइज को बार बार करके. आपको ये नहीं लगे कि यार हम तो एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें. तो एक एक्सरसाइज के इतने सारे वेरिएशन है जो आप कर सकते हो. दे ऑल हिट द सेम पार्ट ऑफ द बाइसेप. It's for your long head, and this will increase the size of your bicep by an inch, by half an inch, whatever it is. I'm pretty sure you'll be happy अगर आपका bicep बढ़ जाएगा. तो start focusing on doing hammer in your bicep workout and start right now. Don't wait, because ये जो time है winters का,
ये बहुत लिमिटेड हो गया है पिछले कुछ सालों से। सर्दी एकदम से आती है और अब्रप्टली चली जाती है, एंड दिस इज एक्चुअली द टाइम व्हेन यू कैन गेन सम गुड मसल विच विल लास्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, एंड दिस इज व्हाट आई डू। आई गो ऑल आउट इन दीज 2 months। मैं पूरा साल वेट करता हूँ कि सर्दी कब आएगी, और ये 2 महीने में मैं शायद अपने पिछले 10 महीने की मेहनत कर देता हूँ, सो दैट आई कैन मेंटेन माई बॉडी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। बिकॉज इट गेट्स एक्सट्रीमली हॉट इन दिल्ली, और 40, 42, 44, 46 तक टेम्परेचर चला जाता है, विच इज़ नॉट एक्जैक्टली वेरी कंड्यूसिव फॉर वर्किंग आउट एंड गोइंग आउट ऑफ योर स्किन। सो दिस टाइम यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम, and so start today, don't wait for tomorrow or next week or the week after that. So incorporate hammer in your bicep workout and you'll definitely see a change. एक एडिशनल जो फ़ायदा है हैमर मारने का वो ये है द मच डिज़ायर्ड बाइसेप वेन, जिसके पीछे लोग मरते हैं कि यार ये वेन कब आएगी। तो अगर आप अच्छा हैमर मारोगे तो ये वेन आपकी बहुत जल्दी आएगी। सो दैट्स एन एडिशनल बेनिफिट दैट यू हैव ऑफ डूइंग हैमर, दैट यू विल गेट अ नाइस snake like bicep vein, which I seem to have almost all year round. अपनी पूरा साल ये मेंटेन रखता हूँ। This is a sign of having low body fat. तो मैं अपना बॉडी फैट जो है वो मेरा 12 महीने में मेंटेन रखता हूँ, वो कम ही रहता है नो मैटर व्हाट आई एम ईटिंग, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट रूटीन, lifestyle, everything. So my body fat remains low, and this is also a sign of that. If you have nice good vascularity, that means your body fat is low, so which is what everyone wants by the end of the day. So let's move on to the next exercise. The next exercise on the list is alternate dumbbell front raises, और ये भी ऐसी एक्सरसाइज है जो नॉर्मली आपके शोल्डर वर्कआउट में कहीं गुम हो जाती है। एंड मैं पर्सनली शोल्डर इज़ माई फेवरेट बॉडी पार्ट। मैं बहुत शोल्डर मारता हूँ। मेरे शोल्डर की जो ग्रोथ है ओवर द ईयर्स, it's been tremendous. I've even done a video on it कि how it's the muscle that's given me the most ROI, most return of investment जो मेरी आई है वो shoulders पे आई है, ना chest पे, ना bicep पे, ना back पे। shoulders का जो growth हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। बट एक एक्सरसाइज ऐसी है इसमें जो फ्रंट रेज है जो कि कहीं ना गुम जाती है, बिकॉज इतनी सारी एक्सरसाइज हैं शोल्डर्स की। बिकॉज शोल्डर में आई थिंक सबसे ज़्यादा हेड्स होते हैं। यू हैव योर एंटीरियर, यू हैव योर रियर, यू हैव योर साइड, यू हैव योर डेल्ट्स। So all in all there are like 10, 12, 15 exercises in a good shoulder workout. तो उसमें कहीं पे you miss out on doing front raises with that equal intensity and focus. So what you can do, जैसा मैंने अभी आपको bicep के लिए बोला, what you can do is don't start with the front raise. आप अपने shoulder को अच्छे से warm up करो, do maybe dumbbell press or barbell press or a Smith machine press, and maybe do front raises as your second exercise. So normally what happens is it becomes like a finisher in your shoulder workout. आप towards the end of your workout ये exercise करते हो, आप dumbbell press भी कर लेते हो, barbell press कर लेते हो, side raises, rear delt, face pull, upright rows कर लेते हो, बीच में front raise कई बारी miss भी कर देते हो, और कई बारी 2-3 सेट मार के आप उसको चलता करते हो। तो अगर आपको अपना anterior delt अच्छा करना है, और see this is like the front part of your delt, तो कभी भी अगर आपने कट स्लीव पहनी हुई है या आप शर्टलेस हो तो सबसे पहले यही पार्ट दिखता है शोल्डर का, साइड का, पीछे का बाद में दिखता है। इट स्टार्ट्स विद द फ्रंट। तो योर फ्रंट हैज़ टू लुक गुड, नॉट ओनली इट हैज़ टू लुक गुड, इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, because lot of the lifts that you do, whether it's your incline barbell pressing, your incline dumbbell pressing, even when you do lat pull down, बहुत सारी एक्सरसाइज में आपका जो फ्रंट डेल्ट है वो यूज में आता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी जो बाकी प्रेसिंग है वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यू विल बी एबल टू लिफ्ट मोर इन ऑल दोज अदर प्रेसेस आई जस्ट मेंशन्ड। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर फ्रंट रेजेस, और इसके भी 2-3 ऑप्शंस हैं। आई जस्ट शो यू क्विकली वो कौन कौन से ऑप्शन है आप कर सकते हो, बिकॉज इफ यू विल बी डूइंग इट रिपीटेडली, आई डोंट वांट यू टू गेट बोर्ड। इफ यू विल हैव इनफ ऑप्शंस, every time you can do a new variation and you can hit your that specific muscle with the same kind of intensity. So let me quickly show you all the variations that I do यहाँ मेरे जिम में जो मैं अपने बच्चों को कराता हूँ। Let me show that to you. So the first variation is again your conventional simple front raise, which is like this, which is like your alternate front raise. और अगर आपने अगेन पुराने बॉडी बिल्डर्स की वीडियोस देखी होंगी तो उनका जो रेंज ऑफ मोशन था वो सिर के भी ऊपर तक लेके जाते थे, which would be something like this. सो अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई हैं, थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल हो गया है। सो यू कैन जस्ट ब्रिंग दिस टू योर आई लेवल। दैट्स वेरिएशन नंबर 1, विच इज़ व्हाट एवरीवन डज। सेकेंड वेरिएशन इज होल्डिंग इट लाइक द हैमर ग्रिप। जैसे आप हैमर के लिए ग्रिप लेते हो, उस ग्रिप में पकड़ के भी आप कर सकते हो। अगर आपको शोल्डर के इश्यूज हैं, इफ यू हैव सम लिंगरिंग इश्यूज इन योर शोल्डर, सम इंजरी, देन आई सजेस्ट दैट यू डू दिस वेरिएशन, बिकॉज ये आपका जो शोल्डर है उसमें थोड़ा सा
आपका जो इंजर्ड पार्ट है उस पर कम इफेक्ट आता है इसका. सो इफ यू हैव सम काइंड ऑफ nagging injuries in your shoulder, then I would suggest that you do this variation, which is like going up like this instead of like this. So that's number 2. Number 3, again जो अभी मैंने आपको हैमर में दिखाया था, you can use a box. और ये भी बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल वेरिएशन है. आप बॉक्स को यूँ पकड़ के, so this is your range of motion with the box. Obviously you will put more weight on it and you get to hold it slightly when you go up. थोड़ा सा आप hold कर सकते हो minor for about 2-3 seconds, not more than that. So that's variation number 3. Variation number 4 is done on the cable pulley. Let me just show you that also. So variation number 4 is like this. आप इसको रोप पे भी कर सकते हो या आप फ्लैट बार यूज कर सकते हो जो नीचे पड़ा हुआ है. एंड यू जस्ट नीड टू तो ये 4 वेरिएशन मैंने आपको बता दिए हैं फ्रंट रेस के. और ये अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो अपने शोल्डर वर्कआउट में, बहुत जल्दी आपका शोल्डर पंप होगा. विद इन द फर्स्ट 2-3 एक्सरसाइज यू विल हैव अ नाइस राउंड शोल्डर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर शोल्डर डेवलपमेंट विल अगेन बी समथिंग दैट यू वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड. अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि आपका शोल्डर बड़ा हो, राउंड हो, उसमें फुलनेस आए, आगे से अच्छा दिखे, पीछे से भी अच्छा दिखे, but the whole idea is that doing these small exercises which people normally don't do, या थोड़ा सा उनको पीछे रखते हैं कि यार हमने हेवी बारबेल मार लिया, हमने हेवी डंबल मार लिया, सी those are mass building exercises. बट आपको साथ साथ ऐसी एक्सरसाइज भी करनी है जो थोड़ा थोड़ा आपके मसल को फाइन ट्यून भी करें, उसको थोड़ा कट भी करें. द काइंड ऑफ पिक्चर्स दैट यू सी ऑन इंस्टाग्राम इन विच दोज 3D डेल्ट्स आर दिख रहे होते हैं आपको. तो अगर आपको 3D डेल्ट्स चाहिए तो आपको ये छोटी एक्सरसाइज भी साथ साथ करनी पड़ेंगी. और ये छोटी नहीं है, अगर आप इनको इक्वली सेम इंटेंसिटी के साथ करोगे विद द राइट अमाउंट ऑफ वेट एंड द राइट अमाउंट ऑफ रेप्स एंड सेट्स, दे आर वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस. और जान निकल जाती है अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करो तो. कभी आप कोशिश करना 5-6 सेट अच्छे से आप साइड रेज मारना, या इंक्रीज करके वेट फ्रंट रेज मारना, जैसे आप डंबल प्रेस में करते हो, बारबेल प्रेस में करते हो, आपकी जान निकल जाएगी. तो आई डू दिस विद माई वर्कआउट्स की मैं एक हफ्ता सिर्फ प्रेसिंग पे फोकस करता हूँ, और जो उसका अगला हफ्ता होता है मैं सिर्फ कंट्रैक्शन पे फोकस करता हूँ, विच इज़ योर फ्रंट रेज, योर साइड रेज, योर रियर डेल्ट. एंड दैट इज़ वाई आई मैनेज टू बिल्ड अ कंप्लीट शोल्डर. ऐसा नहीं है कि बस आगे से गोल है, साइड्स आर लैकिंग, या रियर डेल्ट इज लैकिंग, या डेल्ट्स आर लैकिंग. दे आर ऑल एट पार विद ईच अदर. वो सारे अच्छे से फुली डेवलप्ड हैं. एंड यू कैन सी दैट इन माई वीडियोज़, इन माई फोटोज़, एवरीवेयर यू कैन सी दैट माई शोल्डर इज़ वन ऑफ माई स्टैंड आउट फीचर्स. तो वो ऐसे ही नहीं बना, बिकॉज हर एक पार्ट को इक्वल तवज्जो मैंने दी है, उतने ही इंटेंसिटी से, उतने फोकस के साथ, उतना एफर्ट डाल के उन पर काम किया है, इसलिए आज वो ऐसा दिखता है. सो यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दैट. डोंट कीप फ्रंट रेजेस एज अ साइड. जैसे होता है ना कि एक साइड डिश होती है खाने के साथ, कि हाँ ये साथ साथ सैलेड है या कुछ भी है, इसको तो खा लेंगे, तो उसको आप वैसे मत रखो. उसको एज अ मेन डिश यूज़ करो अपने वर्कआउट में. तो फिर आपको वो मेन डिश वाला ही, जैसे पेट भरता है आदमी का, यू फील गुड आफ्टर हैविंग समथिंग फुल, इट विल सॉर्ट ऑफ गिव दैट सेम फुलनेस टू योर शोल्डर. So start doing it in your workout. Front raises, alternate like this with the box or with the rope. That's your choice. So now on to the fourth exercise, which is for your legs, which are leg curls. तो मेरे पिछले कुछ सालों का जो फेवरेट बॉडी पार्ट है has become my legs. I'll be very honest with you, मैं जब तक प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहा था मैंने अपने लेग्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बिकॉज आई वुड बी प्रैक्टिसिंग फॉर 6-8 आवर्स एवरी डे, एंड आई यूज्ड टू गेट इनफ लेग वर्कआउट ऑन द ग्राउंड कि मैं जिम पे फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अलग से आके अच्छे इंटेंस लेग वर्कआउट्स करूँ. बट अब जब से मैंने थोड़ा खेलना कम किया, अभी भी मैं खेलता हूँ बट नॉट एट द सेम लेवल, नॉट विद द सेम काइंड ऑफ इंटेंसिटी. सो आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग माई लेग वर्कआउट, एंड द वन एक्सरसाइज दैट आई रियली लव डूइंग एंड आई नेवर स्किप आर लेग कर्ल्स. और अब आप बोलोगे कि लेग कर्ल्स तो बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सरसाइज कि इतनी सिंपल, इतनी बेसिक होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो योर लेग्स. सो अगेन व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप बाइसेप और ट्राइसेप लो अपने आर्म्स में, तो पीपल फोकस मोर ऑन द बाइसेप बिकॉज वो दिखता अच्छा है, ठीक है ना. जब आप अपनी पीक दिखाते हो तो इट लुक्स नाइस एंड राउंड एंड एवरीथिंग, बट व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज दैट द ट्राइसेप इज द मसल दैट गिव्स द साइज टू द आर्म्स. तो सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर योर लेग्स. योर हैमस्ट्रिंग्स आर व्हाट गिव द मसल मास. जो डेप्थ है, जो डेंसिटी है, वो आपके हैमस्ट्रिंग्स देते हैं आपके लेग्स को, ना कि आपके कॉर्ड्स. तो पीपल फोकस अ लॉट ऑन डूइंग कॉर्ड सेंट्रिक एक्सरसाइजेज, जैसे कि लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस,
इवन स्क्वाट तो अपने आप में एक फुल एक्सरसाइज है, वो हर बॉडी आपका जो पार्ट है लेग का, क्वाड्स हैं आपके, हैमस्ट्रिंग्स हैं आपके, ग्लूट्स हैं आपके, काफ हैं, सब वर्क करती है। बट ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं अपने क्वाड्स पे वर्क करना और हैमस्ट्रिंग्स पे उतना वर्क नहीं करते। तो ये आप मत करो, फोकस ऑन योर हैमस्ट्रिंग इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो योर लेग्स। अगर आपको अपने लेग्स में मसल मास चाहिए, अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, जिस स्ट्रेंथ को आप फिर फर्दर स्क्वाट में यूज़ कर सको या हेवी लेग प्रेस मारने के लिए यूज़ कर सको, तो आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स पे इक्वली फोकस के साथ वर्क करना चाहिए, विच आई हैव स्टार्टेड डूइंग इन द लास्ट 4-5 years सिंस आई हैव स्टॉप प्लेइंग प्रोफेशनली। तो मैं हैमस्ट्रिंग का अपना वर्कआउट थोड़ा सा अलग ही रखता हूँ, और नो मैटर हाउ मच आई एक्सर्ट ऑन माई क्वाड वर्कआउट, मेरा एंड का एक आधा घंटा 40 मिनट का हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट मैं रखता ही हूँ, जो मैं करता ही करता हूँ। तो इसमें भी जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया, बिकॉज इट्स अ बिग मसल एंड आई डोंट एडवाइस कि आप सीधा आते ही उसको करना शुरू कर दो विदाउट प्रॉपर वार्म अप, तो जो कि इतना टाइम होता नहीं है सबके पास कि लोग आके पहले 15-20 मिनट वार्म अप करें, फिर उसके बाद वो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से शुरू करें। सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट आके आप पहली एक्सरसाइज मत करो हैमस्ट्रिंग की, मे बी स्टार्ट विद सम वॉकिंग लंजेस जो मैं अपने जिम पे बच्चों को कराता हूँ, और सम हैक स्क्वाट्स। तो ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपके क्वाड्स भी वार्म करती हैं, साथ साथ आपके हैमस्ट्रिंग को भी अच्छे से वार्म कर देती हैं। आप वॉकिंग लंजेस करो, आप हैक स्क्वाट करो, उसके बाद आप हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पे या लेग कर्ल पे जाओ। और ये भी ऐसी एक्सरसाइज है कि इसको लोग पीछे के लिए रखते हैं कि आप एक्सटेंशन कर लेते हो, आप स्क्वाट्स मार लेते हो, हेवी लेग प्रेस कर लेते हो, मे बी हिप थ्रस्ट कर लेते हो, फिर आप कहते हो चलो अब थोड़ा टाइम बचा तो मैं लेग कर्ल कर लेता हूँ। तो इसको आप एंड के लिए मत रखो, कहीं कहीं बार ठीक है, बट नॉट एवरी सिंगल टाइम। So you need to have workouts where you are actually focusing more on your leg curl, where your leg curl is the primary exercise that you do in that workout. और मैं कई बारी 10 सेट 11 सेट लेग कर्ल के मार के और 2-3 और एक्सरसाइज करके आई कॉल इट अ डे, बिकॉज दैट्स माई हैमस्ट्रिंग हेवी वर्कआउट। सो लेट मी जस्ट शो यू माई लेग कर्ल मशीन। सो दिस इज़ आवर कन्वेंशनल लेग कर्ल मशीन, और आजकल इस पे भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। देयर इज़ अ मशीन इन विच यू कैन डू लेग कर्ल एंड लेग एक्सटेंशन एक ही मशीन में, बट आई स्पेसिफिकली वांटेड दिस बिकॉज इस पे जो आपके हैमस्ट्रिंग की डेवलपमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। सो इफ़ यू हैव दैट मशीन एज वेल तो दैट्स ग्रेट, बिकॉज देन यू हैव 2 machines ऑन विच यू कैन वर्क योर हैमस्ट्रिंग, बट आई प्रेफर डूइंग दिस मशीन। और इसमें भी मैं यही फोकस करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हेवी ना जाऊँ, मैं थोड़ा सा जितनी मेरी क्षमता है उससे 80% कम वेट मार के अपने रेप ज़्यादा मारता हूँ, बिकॉज आई फाइंड दैट टू बी मोर इफेक्टिव फॉर माई बॉडी। सो बट इफ़ यू आर अ यंगस्टर, इफ़ यू आर अ बिगनर, देन यू शुड ट्राई एंड लिफ्ट एज हेवी एज पॉसिबल। बट फॉर समवन लाइक मी हु इज़ बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 15-17 years, और अब थोड़ा सा मैं मेंटेनेंस पे और रिकवरी पे और मेरी बॉडी में इंजरी ना हो उस पर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है। एंड टच वुड, वन थिंग इज आई वांट टू टेल यू इज दैट मेरे को इतने साल हो गए हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 20-22 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बट मेरे को आज तक कभी हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं हुई है, विच इज़ अ साइन दैट आई हैव स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग्स। सो आई माइट not have the biggest legs, but they are really strong and I like to keep it that way because I like to sort of have an athletic frame. मेरा कोशिश यही रहती है कि मेरा फ्रेम एथलेटिक रहे, ना कि एक बॉडी बिल्डर वाला फ्रेम रहे जिसमें मैं शायद खेल ना पाऊँ या रनिंग ना कर पाऊँ या स्विमिंग ना कर पाऊँ या साइकिलिंग ना कर पाऊँ, बिकॉज आई एन्जॉय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सो आई लाइक बीइंग फंक्शनल, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अभी भी मैं वीकेंड्स पे एवरी वीकेंड आई प्ले मैचेस, so sometimes on Saturday as well as Sunday, so I want my body to be fit enough to be able to do that. And I bowl, मैं मीडियम पेस डालता हूँ, उसमें सारा काम आपकी टांगों का होता है। तो जब मैं खेलता भी था तो हमारी 6-8 घंटे प्रैक्टिस होती थी, जिसमें हम सिर्फ दौड़ रहे होते थे, बॉल डाल रहे होते थे, फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे होते थे। तो इतने सालों से वो लेग्स में जो स्ट्रेंथ बनी है ऐसी बनी है। और उसके बाद जब वहाँ थोड़ा मैंने खेलना कम किया, जिम में वर्कआउट्स अपने बढ़ाए, आई फोकस्ड मोर ऑन डूइंग लेग कर्ल्स, डूइंग लेग एक्सटेंशन। अगर आप फुटबॉलर्स की भी ट्रेनिंग देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट नहीं करते अपने लेग्स का, बिकॉज दे हैव टू कैरी देयर बॉडीज़ थ्रू आउट द डे। उनकी भी बहुत इंटेंस ट्रेनिंग रहती है, पूरे दिन 6-8 घंटे वो फील्ड पे होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हेवी लेग प्रेस कर लेंगे या बहुत ज़्यादा हेवी स्क्वाट मार लेंगे तो उनके लेग्स इतने हेवी हो जाएंगे कि जब वहाँ उनको दौड़ना पड़ेगा तो उनको फिर दिक्कत होती है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ ट्रेनिंग आई हैव केप्ट फॉर माई सेल्फ। इट इज़ मोर एथलेटिक, more towards being functional, not more so towards being or having a bodybuilder's physique. So if you want nice strong legs and which keep you injury free also in the long run, because
लेग्स की जो इंजरी होती है वो एक पॉइंट पे आके सबको होती है, आपके नीज़ में, आपके हैमस्ट्रिंग्स में, कहीं ना कहीं आगे जाके आपको इंजरी होती है। अगर आपको इंजरी प्रिवेंशन करनी है, सो यू बेटर स्टार्ट डूइंग लेग कर्ल्स विद द सेम काइंड ऑफ इंटेंसिटी विच यू शो वाइल डूइंग लेग प्रेस और डूइंग स्क्वाट्स और इवन लेग एक्सटेंशंस। So this is going to keep you injury free in the long run. So stick to doing good quality leg curls. और इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी मारो, आप कंट्रोल्ड रेप्स मारो एंड मेक श्योर कि आपका माइंड मसल कनेक्शन बनाओ। मैं जब भी लेग कर्ल, बिकॉज मेरे को ना इसकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर आप जैसे सर्दियों में वर्कआउट करता हूँ, मैं ऊपर हुड डाल लेता हूँ और फिर आप सिर अपना नीचे रख के बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ होके आप पूरा फोकस करके मशीन कर सकते हो। बाकी जितनी भी लेग की मशीनें जब आप वो कर रहे होते हो तो आपके साइड में आपको लोग दिख रहे होते हैं, सामने लोग दिख रहे होते हैं। एक इकलौती मशीन है जिसमें आपको कोई नहीं दिख रहा होता। आप हेड डाउन करके अपना पूरा फोकस कर सकते हो, अपना माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हो एंड यू कैन हैव सम रियली गुड सेट्स। एंड दैट इज़ वाई आई ना करते हुए मैं 6 से 8 सेट तो इसके मारता ही हूँ, उससे कम मैं कोई मारता नहीं। आज तक कभी नहीं हुआ कि मैंने 3 या 4 सेट मारे और मैंने कहा कि मेरी लेग कर्ल हो गई। So I love this machine and I love working out on it, and you should put this in your leg workout if you want to really grow your legs and you want to have strong legs in the long run, not just now, आगे के लिए भी, future के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। So coming to the biggest muscle of your upper body, which is your back, and this is also one of my favorite muscles. मैं बहुत बैक मारता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो, मेरी फोटोज़ देखी हो, it is one of my favorite muscles. I really enjoy doing my back workouts. I recently got a new back machine for the people at my gym, for myself. उस पर मैं थोड़ा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, that's already in my mind. But coming back to the back muscle and the exercise that you need to really focus on for this winter, for the next couple of months, is your single arm dumbbell rows. और जैसे कि मैंने आपको शोल्डर का बताया था, बैक इतना बड़ा मसल है, उसमें इतने सारे पार्ट्स हैं कि ये एक्सरसाइज कहीं उसमें गुम हो जाती है। तो आप लैट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप पुल डाउन, सीटेड रोइंग, बेंट ओवर बारबल, टी बार रोज, डेड लिफ्ट, ये सारे पे फोकस करते करते सिंगल आर्म डंबल रो ऐसा लगता है कि यार छोटी सी एक्सरसाइज है, अलग से कर लेंगे या 2-3 सेट मार के ख़त्म कर लेंगे। तो ये तो आपने करके देख लिया, बट फॉर दिस नेक्स्ट 2 months स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस एंड सी द डिफरेंस। तो मैं जो अभी मैंने इतनी सारी आपको एक्सरसाइज बताई हैं, वेदर इट्स योर डेड लिफ्ट और योर बेंट ओवर बारबल और योर टी बार रोज, दीज आर ऑल कंपाउंड मूवमेंट्स। और ये एक आइसोलेटेड मोशन है, आइसोलेटेड मूवमेंट है, आइसोलेटेड एक्सरसाइज है, और वो भी यूनिलैटरल, विच मीन्स कि एक टाइम पे आप एक ही पार्ट यूज़ कर रहे हो अपनी बॉडी का। पहले आप राइट से करते हो, फिर आप लेफ्ट से करते हो, बाकी चीज़ों में आप एक ही मोशन में आप लिफ्ट कर रहे हो जितनी भी कर रहे हो। सो ये आइसोलेटेड मोशन क्या करता है, ऑल दोज पिक्चर्स दैट यू सी ऑन इंस्टाग्राम, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोशॉप, XYZ, जो भी है, आई डोंट गेट इनटू ऑल दैट, बट ऑल द नाइस कट्स दैट यू सी इन द बैक of all the athletes or bodybuilders or fitness influencers, they come from this exercise. तो ये जो exercise है, isolation जो motion है इसका, this is what leads to those cuts. तो बाकी जितनी भी compound exercise हैं वो आपको size देंगी, आपको strength देंगी, but वो आपको वो जो cuts हैं, desirable जो cuts सबको अच्छे लगते हैं, सबको चाहिए, वो नहीं देती वो। उसके लिए भी आपको ये exercise करनी चाहिए if you want those cuts in your back, if you want your back to look like a fucking Christmas tree. So let me just tell you one thing about single arm dumbbell rows, जो कि काफ़ी लोग जिसमें confusion उनको रहता है कि what should be your position. तो उसका मैं एक चीज़ सिर्फ क्लियर करना चाहूँगा और बाकी साथ साथ मैं थोड़े से आपको और इसके बेनिफिट बता दूंगा। So let me just show that to you. So जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि जो बाकी कंपाउंड मोशन है वो आपको स्ट्रेंथ देंगी, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगी, इवन आपका साइज बिल्ड करेंगी, बट जो सिंगल आर्म डंबल रोज हैं वो भी वो काम करेगा, साथ साथ इट विल गिव यू दोस कट्स। तो इसमें यूजुअली लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि अपने आप को पोजीशन कैसे करें, वेदर दे शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, स्लाइटली इरेक्ट, व्हाट शुड बी द राइट पोजीशन फॉर इट। मैं भी आपको थोड़े 3-4 रैप करके दिखाऊंगा, आपको थोड़ा इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि जब आप सिंगल आर्म डंबल रोज कर रहे हो तो आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी रहनी चाहिए। सो या जितना इंक्लाइन अभी ये बेंच है, या तो आप बेंच को इतना इंक्लाइन कर लो और उसके बैक साइड पे आ जाओ, नहीं तो अगर आपके पास ऐसी कोई मशीन है, यू कैन यूज दैट मशीन। सो ट्राई एंड नॉट डू इट ऑन अ इंटायरली फ्लैट सर्फेस, बिकॉज उसमें भी आपकी जो बैक है ना बहुत ज़्यादा बेंड होती है। सो मैं व्हाट आई डू इज व्हेन आई हैव टू डू सिंगल आर्म रोज, आई कम टू दिस मशीन, इस पे इतना बेंड होके एंड आई डू माई सिंगल आर्म रोज। सो रादर देन बीइंग टू लो लाइक दिस or being too high, in which I'm already literally standing. The idea is to be somewhere in the middle
and then just focus on the squeeze. So जिन बच्चों को इस एक्सरसाइज का मोशन नहीं समझ आता उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने पहले ज़माने में कभी जनरेटर देखे हैं चलते हुए या कभी उनके पेरेंट्स ने चलाए हैं, हमने तो खुद चलाए हैं, मेरे टाइम तक भी जनरेटर होते थे, अब तो इन्वर्टर आ गए हैं, तो कुछ ऐसे ही हम जनरेटर चलाते थे कि उसकी वायर पकड़ के हम ऐसे खींचते थे, एंड विच इज़ द राइट वे टू डू योर सिंगल आर्म रोज. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड अबाउट दिस एक्सरसाइज इज दैट व्हेन यू आर समवेयर इन द मिडल ऑफ योर वर्कआउट, और बैक का क्या होता है, वर्कआउट जो होता है बहुत ज़्यादा लोड लेता है आपकी बॉडी पे, तो जब तक आप एंड में आते हो उस वर्कआउट के, यू आर प्रीटी एग्जॉस्टेड, यू डोंट वांट टू लिफ्ट एनी मोर. सो दैट इज़ व्हाई इट्स अ गुड आइडिया मे बी टू स्टार्ट विद सिंगल आर्म डंबल रोज इन योर बैक वर्कआउट. तो मैं कई बार ये करता हूँ कि मैं अपने बैक वर्कआउट की शुरुआत ही सिंगल आर्म रोज से करता हूँ, ताकि जो मेरे लैट्स हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं, और उसके बाद मैं जितनी भी पुलिंग करूँ, ऑल द पुलिंग मोशन दैट आई डू इन माई बैक वर्कआउट, वेदर इट्स लैट पुल डाउन or seated rows or any other kind of rows, it gets easier for me to do that because my lats are already activated. तो जो मेरे पीछे का लैट, ये जो outer lats हैं plus the middle portion of my back, this is where this exercise hits, and then I'm good to go for the rest of my workout. So it's a good idea to maybe start, जैसे मैंने अभी आपको बाकी एक्सरसाइज के लिए बोला कि आप वार्म अप करके फिर सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे वो एक्सरसाइज करो. इसके साथ मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर वर्कआउट विद सिंगल आर्म रोज. You can finish your workout with single arm rows, you can start it with single arm rows, you can put them somewhere in between. तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, बट आप कोशिश करो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 months इसको आप प्रायोरिटी पे रखो, या तो अपना वर्कआउट इसे स्टार्ट करो या डू इट एज द सेकेंड और थर्ड नंबर एक्सरसाइज. एंड एक मैं इसका आपको वेरिएशन और दिखा देता हूँ, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरिएशन, विच इज़ अ मशीन. तो अगर आपको डंबल पे ये बैक टू बैक नहीं करना, व्हाट यू कैन डू इज कम विद मी. सो अगर आपको सिर्फ डंबल पे सिंगल आर्म रोज नहीं करने, एंड इफ़ यू हैव दिस मशीन इन योर जिम, यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन द मशीन. मेरी काफ़ी फेवरेट मशीन है. जब मैं डंबल पे एक्सरसाइज नहीं करता तो मैं इस पे, और इस पे क्या है कि यू कैन जस्ट कीप ऑन लोडिंग द वेट आफ्टर एवरी सेट. तो डंबल पे थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज बार बार डंबल रखो, फिर दूसरा उठाओ, फिर रखो, फिर उठाओ. इस पे साथ ही आप अपना वेट रख सकते हो, एंड विद एवरी सेट यू कैन इंक्रीज द वेट बाय 10 और 15 और जितना आपकी क्षमता है उस हिसाब से. और इसमें भी यू कैन व्हेन यू आर डूइंग कंपाउंड मोशंस लाइक अ बेंट ओवर बारबल और अ डेडलिफ्ट, you don't get to hold that weight because it's really heavy and it pushes you down. You are working against gravity. इसमें क्या होता है, जब आप मशीन से इसको पुल कर रहे हो या इवन आप डंबल से भी जब पुल कर रहे हो, तो यू कैन होल्ड इट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स. तो वो जो स्क्वीज है एट द एंड ऑफ योर मोशन, दैट इज व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ एंड दैट मच डिजायर्ड कट्स इन द लॉन्ग रन. तो उस स्क्वीज पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ना कि बस सिर्फ आप फटाफट इस मोशन में आप वर्कआउट कर रहे हो. जब भी आप वेट को पीछे लेके आओ, उस स्क्वीज को, उस होल्ड को आप फील करो फॉर अबाउट 2 seconds, नॉट मोर, बिकॉज इट माइट लीड टू अ क्रैम्प ऑल्सो. अगर आप ज़्यादा उसको होल्ड करोगे तो 2-3 सेकेंड उसको आप होल्ड करो और उसको आप फील करो. And there are enough videos of me doing this machine. You can go to my Insta or anywhere else and you can see those videos. I might even put a short picture in this video so that you can see the kind of motion I do when I do this machine or when I do the single arm dumbbell rows. So start putting dumbbell rows or these machine rows in your back workout. Don't keep it as a side exercise, as a finisher. उसको थोड़ा up front लेके आओ at least for these 2 months and you'll see a marked difference in your back. अच्छे कट्स आपको मिलेंगे बैक में, अच्छी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. अगर आप अच्छा लिफ्ट कर सकते हो सिंगल आर्म रोज पे भी 25-30, अगर आपके जिम में 30 के बियॉन्ड डंबल है, 35-40 तक भी आप जा सकते हो, तो वो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बढ़ाएगा. कमिंग टू आवर नेक्स्ट बॉडी पार्ट विच इज़ ट्राइसेप्स, और जो आपके ट्राइसेप्स हैं विच आर द बिगर पार्ट ऑफ योर आर्म. तो अगर आपको अपना आर्म साइज बढ़ाना है, अगर आपको अपने आर्म्स बड़े करने हैं, यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर ट्राइसेप्स एंड नॉट ऑन योर बाइसेप्स. और ट्राइसेप्स जस्ट लाइक बैक एंड शोल्डर, इसमें इतनी एक्सरसाइजेज हैं, इतनी वेरिएशंस हैं कि एक बहुत ही क्लासिक एक्सरसाइज है जो लोग या तो करते नहीं हैं या छूट जाती है, या महीने में शायद 2 बार या 1 बार ही करते हैं, विच आर योर पैरेलल बार डिप्स. So I understand that there are a lot of variations in your tricep workout. There are a lot of attachments that you can use like your rope, your V, your flat bar, your zigzag bar. मेरे खुद के जिम में मैंने ऑलरेडी अटैचमेंट्स होने के बाद अपने आप से काफ़ी अटैचमेंट्स मैंने बनाए हुए हैं वेल्ड करा के, बट उसके बावजूद
ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर आपको अपना मसल मास बढ़ाना है ट्राइसेप का, और अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी लिफ्टिंग की, नॉट जस्ट ऑन योर ट्राइसेप बट इन योर बेंच प्रेसिंग, योर इंक्लाइन प्रेसिंग, योर बारबल प्रेसिंग अबव योर हेड, दिस इज़ एन एक्सरसाइज विच विल डू दैट फॉर यू। ये बहुत ही मतलब क्लासिक एक्सरसाइज है, और आज के टाइम में मैं देखता नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सरसाइज करते हुए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। इट्स नॉट एज सिंपल एज डूइंग अ ट्राइसेप पुश डाउन और अ रोप पुश डाउन और एनी ऑफ दोज एक्सरसाइज। दिस इज एक्चुअली टफ, and again I'm saying this is something that people do towards the end of their workout when their muscle is totally exhausted, जब उसमें जान ख़त्म हो चुकी होती है। तो जब वो टाइम पे कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका मसल आपको रिस्पांस देगा और आप अच्छे सेट्स और अच्छे रेप्स इस एक्सरसाइज के या किसी भी एक्सरसाइज के आप मार पाओगे। सो यू नीड टू स्टार्ट पुटिंग दिस एक्सरसाइज इन योर वर्कआउट एंड नॉट टुवर्ड्स द एंड बट समवेयर इन द मिडल। आई डोंट एडवाइज दैट यू स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज बिकॉज इट कैन समटाइम्स लीड टू शोल्डर इंजरीज। अगर आपका शोल्डर अच्छे से वार्म नहीं है तो आप इसके शुरू मत करो, बट इसको आप जैसे थर्ड या फोर्थ या इवन फिफ्थ जो आपकी एक्सरसाइज है उस पर आप इसको रख सकते हो, जस्ट 1 or 2 exercises before you are about to finish with your workout, or somewhere bang in the middle, कि maybe your third exercise or your fourth exercise. So let me just take you to our parallel bar dip station and I'll just share a couple of things with you on that. So this is our parallel bar station, और ऐसा ही एक स्टेशन मेरे घर पे भी है। जब लास्ट टाइम कोविड हुआ था, लॉकडाउन लगे थे, तो मैं घर पे अपने वर्कआउट्स करवा रहा था और वहाँ पे भी मैं बच्चों को ये एक्सरसाइज ज़रूर करवाता था। चेस्ट वाले दिन भी और ट्राइसेप वाले दिन भी दोनों टाइम मैं एक्सरसाइज इनको करवाता था और मैं खुद भी करता था। दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ट्राइसेप एक्सरसाइजेज। आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ एल्बो जॉइंट इंजरी, सो अभी मैं कुछ टाइम से नहीं कर रहा, शायद कुछ टाइम और नहीं करूँगा, बट एनीवन हु इज 100% फिट, जिसको कोई भी जॉइंट इशू नहीं है या एल्बो इंजरी नहीं है या रिस्ट इंजरी नहीं है या शोल्डर इंजरी नहीं है, उसके लिए बहुत कामयाब एक्सरसाइज है। एंड यू नीड टू स्टार्ट पुटिंग दिस इन योर ट्राइसेप वर्कआउट। सो इसके भी 2 वेरिएशन होते हैं, एक आपके चेस्ट के लिए होता है, एक आपके ट्राइसेप के लिए होता है। सिर्फ उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ एंगल का फर्क होता है। इन वन यू आर इरेक्ट एंड इन वन यू आर स्लाइटली बेंट फॉरवर्ड। सो जस्ट नीड टू फोकस कि जब भी आप एक्सरसाइज करो आपका माइंड मसल कनेक्शन बना हुआ है, और आप जब करोगे आपको अपने आप फील हो जाएगा कि स्ट्रेस आपके ट्राइसेप पे आ रहा है या आपके चेस्ट पे आ रहा है। सो वो जब भी आप करो तो यू मेक श्योर दैट यू आर एंगेजिंग योर ट्राइसेप व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर योर ट्राइसेप एंड नॉट योर चेस्ट। बट दिस इज अगेन अ कंप्लीट एक्सरसाइज। अगर आपको अपना ट्राइसेप बड़ा करना है, इफ यू वांट टू मेक इट बिग एंड डीप, इफ यू वांट दिस कट इन योर ट्राइसेप, स्टार्ट डूइंग दिस। तो बाकी आप ये पुश डाउन, रोप वगैरह तो आप करते ही हो, करते ही आए हो, आगे भी करते रहोगे। ये ऐसी एक्सरसाइज है और ये ऐसा स्टेशन है, आजकल बहुत सारे जिम्स में है भी नहीं है, बट इसके बहुत सारे ऑल्टरनेट आ गए हैं। यू कैन ऑलवेज लुक फॉर दोज ऑल्टरनेट, नहीं तो आप यू कैन ऑलवेज गो टू अ पार्क ऑल्सो। अगर आप देखोगे जितने भी पार्क्स हैं वहाँ पे एक पैरेलल बार डिप का एक अलग से झूला टाइप होता है जिस पे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अगर आप में विल है एंड इफ यू रियली वांट सम गुड क्वालिटी मसल मास ऑन योर ट्राइसेप, देन यू विल हैव टू पुट इन सम एफर्ट। इफ यू हैव दिस स्टेशन एट योर जिम, good enough. If not, then make those efforts, go to a park or anywhere else where you can find something similar and start doing these dips, because they will really give you a nice cut and big tricep just in about maybe 2 months. 2 महीने आप एक्सरसाइज कर लो, 2 महीने में आपको फर्क दिख जाएगा अपने ट्राइसेप में। So this is your tricep exercise that you need to incorporate in your workout schedule for the next 2 months, whole of Jan and whole of Feb. एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्चुअली टेल मी कि क्या फ़र्क आया है। और ये जब आप करोगे ना ही आपका सिर्फ ट्राइसेप बड़ा होगा, आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, बिकॉज ये जब आप करते हो आपका शोल्डर एंगेज होता है, आपकी चेस्ट एंगेज होती है, लिटिल बिट ऑफ योर बाइसेप इज ऑल्सो एंगेज, तो ये सारे मसल्स को वर्क करता है, नॉट जस्ट योर ट्राइसेप। सो इट इज नॉट एन आइसोलेशन वर्कआउट, इट वर्क्स मोर ऑफ योर अपर बॉडी, आपकी पूरी अपर बॉडी वर्क करता है, जैसे कि पुशअप वर्क करता है, दिस वर्क्स आउट द सेम मसल्स। तो अब हम आ गए हैं द लास्ट एक्सरसाइज of the list which you need to do during winters, during next 2 months, और ये भी मेरी all time favorite exercise है, which are your barbell shrugs। तो ये आपके traps के लिए है, which are your crowning glory of the shoulder, ठीक है ना। आपके शोल्डर यहाँ तक नहीं होते, आपके शोल्डर यहाँ तक हैं, तो जो ट्रैप्स हैं आपके which are sitting on top of your shoulder is what this exercise develops। और इसके साथ साथ there are a lot of other exercises that people do for the traps like upright rows, लाइक फेस पुल्स, बट ये जो एक एक्सरसाइज है और वो भी बारबल पे, डंबल पे भी करते हैं, बट बारबल पे एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही स्क्वीज़ मिलता है आपको जब करते हो। और दोनों साइड पे जब आप लोड करके वेट ये एक्सरसाइज करते हो ना, तो इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल।
So this is again something that people do towards the end of the workout, and in this case I would actually tell you कि हाँ आप इसको एंड के लिए ही रखो, बिकॉज अगर आप ये पहले कर लोगे और बहुत हैवी कर लोगे तो आपका शायद बाकी वर्कआउट उतना अच्छा हो नहीं पाएगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैं अब तो नहीं, बट एक पॉइंट ऐसा था जब मैंने अपने ट्रैप्स के लिए एक दिन अलग से रखा हुआ था हफ्ते में, उस दिन मैं सिर्फ ट्रैप्स मारता था। सो आई वुड बी डूइंग लॉट ऑफ बारबेल श्रग्स, लॉट ऑफ डंबल श्रग्स, अपराइट रोज, फेस पुल्स एंड कपल ऑफ अदर एक्सरसाइजेज जो मैंने एक दो अपने लिए वेरिएशन निकाले हुए हैं। तो 5-6 एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ मैं अपने ट्रैप्स के लिए करता था। और फिर आप सोच सकते हो कि ट्रैप डेवलपमेंट मेरी कहाँ चली गई होगी, और वो आज तक उसी वजह से ट्रैप्स मेरे 12 महीने इतने अच्छे रहते हैं, बिकॉज आई हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट इनटू दैट। एंड आई जस्ट शो यू वन पिक्चर ऑफ माइन विच इज़ राइट हियर इन द जिम ऑफ दैट टाइम। So this is the picture I was telling you about, and you can see the kind of shoulder and trap development जो हुई है इस टाइम पे। So this was a time and I'm actually doing barbell shrugs in this। तो इस टाइम पे मैं अलग से I designated a day for my trap development, जो मैंने अभी आपको सारी एक्सरसाइज बताई हैं वो मैं करता था। But obviously I could not do it for a very long time because it takes a toll on your muscle। तो मैंने कुछ टाइम तक वो वर्कआउट किया, वो अपना रिजीम रखा, और उसके बाद जब मुझे लगा था आई एम सेटिस्फाइड विद माई ट्रैप डेवलपमेंट, जितना मेरे को उनको उठाना था, जितना उनको मैंने स्ट्रेंथन करना था वो मैंने कर लिया। सो आई केम बैक टू माई अदर शोल्डर वर्कआउट इन विच आई डू 8 or 9 सेट्स फॉर माई ट्रैप्स एट द एंड ऑफ माई शोल्डर वर्कआउट। और मैं एक काम और करता हूँ, और मैं अपने जिम पे भी वो काफ़ी लड़कों को बोलता हूँ करने के लिए, करते भी हैं, विच इज़ दैट यू कैन एक्चुअली हिट योर ट्रैप्स ट्वाइस इन द वीक। You don't need to do it once. You can do it with your shoulder workout. You can also do it with your back workout. Because जब आप बैक कर रहे होते हो तब भी आपके ट्रैप्स काफ़ी एक्टिवेटेड होते हैं। तो at the end of your back workout, you can again hit your traps. You can do shrugs, you can do upright rows, you can do face pulls. But all in all, barbell shrugs have been one of my favorite exercise अभी तक। और इसके भी अब मेरे जिम में 2-3 वेरिएशंस हैं, तो मैं आपको क्विकली वो दिखा देता हूँ। बिकॉज इफ़ यू हैव दो सेम वेरिएशन एट योर जिम, यू कैन देन नॉट डू जस्ट वन वेरिएशन, यू कैन डू दोज मल्टीपल वेरिएशन एंड हैव अ रियली गुड ट्रैप वर्कआउट। सो लेट मी जस्ट शो दैट यू। सो दिस इज योर कन्वेंशनल श्रग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मैं बहुत कर रहा था एक टाइम पे। सो दिस इज द मोशन एंड दिस इज द ग्रिप। जैसा आप डेडलिफ्ट के लिए ग्रिप यूज़ करते हो, यू कैन यूज़ दैट सेम ग्रिप, और इसको आप ऊपर लाके थोड़ा स्क्वीज़ करके होल्ड कर सकते हो। एंड अगेन आई वुड से डोंट यूज़ बहुत ज़्यादा हेवी वेट, आप मत यूज़ करो। इतना वेट यूज़ करो कि जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, आपका जो फॉर्म है वो अच्छा है और वो इफेक्ट ना हो। क्या करते हैं लोग, यूजुअली बहुत सारा वेट लगा लेते हैं, तेज़ मारते हैं, बॉडी पोस्चर उनका गलत होता है, लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा होता है, और जहाँ आना चाहिए विच इज़ योर ट्रैप्स वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होता। So don't do that, don't be a fool, don't ego lift while doing shrugs। बहुत लोग करते हैं, सारे जिमों में करते हैं, मेरे जिम में भी कुछ लोग करते हैं, मैं वही टोक देता हूँ। एंड आई टेल देम दैट देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस एक्सरसाइज इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली। अगर आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपका बॉडी पोस्चर गलत हो रहा है, आपको सूनर और लेटर आपके लोअर बैक में इंजरी होगी ही होगी। सो दिस इज़ वेरिएशन नंबर 1 विच इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। मैं आज भी प्रेफर करता हूँ ये करना। मैं मशीन्स पे मेरे को इतना मज़ा आता नहीं है, बट इसके अलावा एक मशीन में लाया हूँ, और दिस इज़ दिस मल्टी प्रेस। और इसमें आप देख सकते हो, ये अभी श्रग पोजिशन में मैंने इसको रखा हुआ है। तो आप खड़े होके साइड पोजिशन में अगर आपको श्रग्स मारने हैं लाइक दिस, सो दिस मशीन लेट्स यू डू दैट। आप बीच में खड़े होके साइड से होल्ड करके इसके हैंडल, एंड देन यू कैन जस्ट गो अप एंड यू कैन गो डाउन। तो दिस वॉज स्लाइटली वाइडर बिकॉज दिस वॉज इन द डेडलिफ्ट ग्रिप। ये थोड़ा सा उससे नैरो है, थोड़ा सा आपको अंदर से अलाउ करता है अपना रेंज ऑफ मोशन ऊपर तक ले जाना। सो दिस इज वेरिएशन नंबर 2 विच यू कैन डू फॉर श्रग्स। वेरिएशन नंबर 3 कैन बी डन ऑन द स्मिथ मशीन। और इसमें जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, 2 ग्रिप मैंने दिखाई, थर्ड ग्रिप दैट यू कैन यूज इज अ फ्रंट ग्रिप। तो आप थोड़ा सा इसको आगे से पकड़ के लाइक दिस, एंड फिर आप अपने श्रग्स कर सकते हो ऑन अ स्मिथ मशीन। ये जितनी भी वेरिएशन है, आपका एरिया वही हिट कर रही है, बट थोड़ा सा एंगल में फ़र्क आ जाता है। और ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग इट लाइक ट्वाइस इन द वीक, यू वांट सम वेरिएशन इन अ वर्कआउट,
then you can use all these different methods to hit your traps. So whether it's on a barbell, whether it's on a multi-press or whether it's on a Smith. इसके अलावा भी मेरे पास एक और वेरिएशन है अपने जिम पे, which is a very old school variation. I'll just show it to you. I'm pretty sure कि वो आजकल कोई भी नहीं करता. मैं भी अपने जिम पे वो बहुत ज़्यादा करवाता नहीं हूँ, because उसमें भी बहुत you have to load the weight and it takes a little bit of your time, plus you need a designated space for it. और जब रश होता है, एक बारी में 40-45 लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको बीच में रख के उस पर वर्कआउट करना. बट nonetheless I'll show it to you. If you go to the gym at a time जब लोग कम होते हैं और अगर आपके जिम में वो वेरिएशन अवेलेबल है, वो इक्विपमेंट अवेलेबल है, तो इट्स अगेन अ वेरी गुड वे टू हिट योर ट्रैप्स. लेट मी जस्ट शो इट यू. सो दिस इज व्हाट यू कॉल अ ट्रैप बार. इसका नाम ही ट्रैप बार है, और भी कुछ नाम है बट मैं तो ट्रैप बार बोलता हूँ इसको. और इसको आप नीचे रख के दोनों साइड पे इसमें प्लेट लोड करके इसमें बीच में खड़े होके अगेन यू आर एबल टू डू योर श्रग्स. और इसका थोड़ा सा ये रहता है कि फिक्स्ड मोशन रहता है, बिकॉज इसकी बनावट ऐसी है. तो अगर कई बार ये होता है कि थोड़ा सा एंगल ऐसा बनता है कि वो ज़्यादा पिंच करता है आपके शोल्डर को, तो मैं कभी कभी इसको यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑफन नहीं करता. एंड अगेन इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल इक्विपमेंट. आजकल इसके भी नए नए वेरिएशन आ गए हैं, मशीन्स आ गई हैं जिसपे आप सेम चीज़ कर सकते हो. तो इट्स मच बेटर टू यूज़ दैट, बिकॉज इट्स ईजियर ऑन योर मसल एंड योर जॉइंट्स. तो लाइक आई सेड, गोइंग फॉरवर्ड आई एम नाउ डूइंग एक्सरसाइजेज जो मेरे जॉइंट पे कम आए, उनको कम इफेक्ट करें, और ज़्यादा वो जो मैं मसल हिट कर रहा हूँ सिर्फ उसी पे आए. सो दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर डूइंग इट ऑन दिस. बट मैं या तो बारबेल यूज़ करता हूँ, या मैं मशीन यूज़ करता हूँ, या मैं स्मिथ पे यूज़ कर लेता हूँ. इफ़ यू आर अ न्यूबी, अगर आपने अभी अभी जिम शुरू किया है या आपको कुछ टाइम हो गया है, तो आप ये वेरिएशन यूज़ कर सकते हो, बिकॉज अभी योर जॉइंट्स आर फ्रेश, you have no injuries in your body, so you can still use this variation, you can use this equipment and you can develop some really nice traps. और जितना मर्जी आप शोल्डर वर्कआउट कर लो, जितना मर्जी आप बारबेल प्रेस मार लो, डंबल प्रेस मार लो, अगर आपके ट्रैप्स लैगिंग हैं, इफ़ दे आर नॉट एट पार विद योर शोल्डर, यू विल ऑलवेज हैव फ्लैट लुकिंग शोल्डर्स. तो वो कभी भी इंप्रेसिव नहीं लगेंगे. ये पार्ट जो आपका है ऊपर का, इसको आपको अलग से डेवलप करना पड़ेगा. अगर आपको लगता है कि सिर्फ शोल्डर प्रेस मार के या डंबल प्रेस मार के या साइड रेस मार के चीज़ डेवलप होगी, तो ये इतनी ईजिली डेवलप नहीं होगी. इसके लिए आपको अलग से डेजिग्नेटेड टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा अपने ट्रैप्स को. एंड देयर इज़ नो बेटर एक्सरसाइज देन डूइंग अ बारबेल श्रग. यहाँ बारबेल पे आप करो या स्मिथ पे करो, बट वो जो एक कॉन्ट्रैक्शन आती है, एक कांस्टेंट टेंशन आपकी मसल पे रहता है जब आप ये वर्कआउट करते हो इस एक्सरसाइज से, वो अनपैरेलल्ड है, वो किसी भी और एक्सरसाइज में नहीं आता. ठीक है. फेस पुल इज अगेन अ गुड एक्सरसाइज, योर अपराइट रो इज अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट दिस इज लाइक ऑन टॉप ऑफ दैट, ये उससे काफ़ी ऊपर की एक्सरसाइज है. और जो कॉन्ट्रैक्शन और आपका जो वेट को आप जो स्टेबल रखते हो एक्सरसाइज करते हुए, यू सी इन बोथ द मशीन वेरिएशन, वेदर इट्स योर अपराइट रो और योर रोप, इसमें मशीन आपको अपनी तरफ खींचती है व्हेन यू आर डूइंग टू मच वेट. दिस इज द ओनली एक्सरसाइज इन विच यू कैन एक्चुअली बी इन कंट्रोल ऑफ द वेट. आप वेट को कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको होल्ड कर रहे हो. अगर आपसे नहीं लग रहा, यू कैन ऑलवेज टेक अ ब्रीदर फॉर अबाउट 2 seconds एंड देन डू फ्यू मोर रेप्स एट द एंड. और वो एंड के, ये तो आर्नल्ड ने भी कहा था कि जो एंड के 5-6 रेप होते हैं ना, व्हेन यू आर टोटली डेड, व्हेन यू आर टोटली एग्जॉस्टेड, दोज आर व्हाट मेक योर बॉडी. वही काउंट करते हैं, वही आपका मसल डेवलप करते हैं, वही आपकी बॉडी बनाते हैं. 10, 12, 15 रेप तो हर बच्चा मार रहा होता है जिम में. उसके बियॉन्ड जो जाता है, जो थकने के बाद आप रेप्स मारते हो, दैट इज व्हाट मेक्स योर बॉडी, and that is what makes that specific muscle, and that is what you need to do if you want to have a better body which looks better than everyone else and which gives you that satisfaction कि हाँ यार मैंने जो effort डाला है उसका मेरे को result मिला है. So we are at the end of the video now, and I hope you enjoyed this video and the content that I shared with you. और जो भी मैंने आपसे exercise के बारे में share किया है, I hope that you incorporate that in your upcoming workouts for the next 2 months, because you'll surely see a difference in your physique, in your body, in your strength and your muscle mass if you do that. So these are again the 7 exercises जो मैंने आपको अभी बताई हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा मैंने अपना ज्ञान शेयर किया है कि आपको क्यों इनको अपने वर्कआउट्स में डालना चाहिए और कहाँ कहाँ इनको आपको यूज़ करना चाहिए. सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सर्टन थिंग्स, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली यूज़ दोज थिंग्स. तो नॉलेज तो बहुत लोगों को आजकल है और मिलती रहती कंटिन्यूसली गूगल से, अलग अलग सोर्सेज से, बट उसको आप कितना यूज़ करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है. सो काइंडली यूज़ दिस नॉलेज इन योर वर्कआउट्स टू सी रिजल्ट्स एंड टू मेक दोज गेन्स दैट एवरीवन विशेस टू मेक ड्यूरिंग विंटर्स, बिकॉज विंटर हर साल सिर्फ 2 महीने के लिए आती है. इसको आप मैक्सिमाइज़ करो. इसमें जितना आप अपना मसल मास इंक्रीज़ कर सकते हो, जितना आप अपनी मसल क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, काइंडली डू दैट.
I've been doing it for the last n number of years. There is a big difference in my physique during winters and during summers. I stay quite lean during summers और winters में I go up by like 4 to 5 kilos. अच्छा मैं अपने आप को भर लेता हूँ जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि कमी आ रही है, ताकि फिर जब summers आए तो मैं अपनी body को maintain रख सकूँ. It's a very effective way to maintain your body year after year. So thanks for watching, stay tuned, and I'll be back with more content soon. And do subscribe to the channel and share it with family and friends if you haven't done that already. Thanks again.